Yes, very good morning, student. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. See here, we have started with the hypothesis, and you all know the meaning of hypothesis. It is the like we are giving some presumption ki like what will going to happen in your research. Okay, so एक just assumption point of view रहता है hypothesis, and we have started with the types of hypothesis. Nature significance हम लोगों ने देखा, sources we have seen, नहीं sources नहीं देखा. Okay, now we have to start with the types of hypothesis. So we have seen the hypothesis, how it has been framed on the basis of function. So descriptive में अगर size, form, rate, distribution of some variable और state of existence दिखाया जाता है, अगर वो statement में ऐसा लिखते हैं हम लोग, so it will be called as a descriptive hypothesis. Relational hypothesis में दो variables के बारे में relation दिखाया जाता है, so that relation can be positive or can be negative, so that is your relational hypothesis. And then causal में, here also we are talking about the two variable, but we are showing like the one variable is like it will going to have the impact on the other variable. तो वो हम लोग कैजुअल हाइपोथेसिस में दिखाते हैं. एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में फर्स्ट वी हैव सीन द कॉमन सेंस हाइपोथेसिस. मतलब एक कॉमन सेंस वाला हम लोग बताते हैं कि हाँ ये ऐसा रहता है तो वो ऐसा होना ही चाहिए करके. अगर एजुकेटेड नहीं है तो अच्छा जॉब मिलेगा ही नहीं. सो ये दिस इज द काइंड ऑफ अ कॉमन सेंस हाइपोथेसिस. ओके. नाउ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इज व्हाट एक्चुअली, ये मैंने पढ़ाया था, सुना आपको कॉम्प्लेक्स वाला? नहीं ना? यू नहीं रिमेम्बर? मैम। हाँ, okay. See, complex hypothesis creates tools and problem for research in complex areas of business. They work at a higher level of abstraction. This hypothesis try to test the existence of logically derived relationship between empirical uniformity. They are also called ideal type. Complex hypothesis is difficult to study. For example, distribution of population or migration of laborer region wise. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि दे आर बेसिकली हेल्पिंग यू टू क्रिएट द टूल्स एंड द प्रॉब्लम फॉर रिसर्च इन कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ बिजनेस. लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तो उसको लॉजिकली प्रूव कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट वर्क. ठीक है. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. देन अगेन माइग्रेशन ऑफ लेबरर, मतलब रीजन वाइज हम लोग को देखना है कि लेबरर्स कैसे माइग्रेट होते हैं करके. तो वो सब आ जाता है तुम्हारा डिफिकल्टीज में, तो इसके लिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स वन. नाउ एनालिटिकल. Some hypotheses are concerned with the relation of analytic variables, such as such hypotheses take place at the level of abstraction. Analytic variable require the formulation of a relationship between changes in one property and changes in another. Abstraction is the highest level. Before this, there are empirical uniformity, which indicates simple difference, and the ideal types, which indicates specific coincidence of observation. मतलब उन्होंने कहा है कि एनालिटिकल हाइपोथेसिस मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वी कैन से कि हम लोग अजम्पशन करते हैं लाइक विदाउट एनी एम्पिरिकल स्टडी. मतलब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, बट हम लोग को ऐसा लगता है करके. सो दैट कुड बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विल गोइंग टू हैपन इन analytical hypothesis. For example, high mortality rate among children is high in Asian countries as compared to the Western country. This is an empirical study. An ideal type study would reveal that high mortality rate is prevalent among the economically poor class of family. At the abstraction level, mortality among children of economically well off family is going down. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि एनालिटिकल हाइपोथेसिस में उन्होंने जैसे दो एग्जांपल दिए हैं. दे हैव टेकन द टू वेरिएबल्स, लाइक वन इज द मोर्टेलिटी रेट अमंग द चिल्ड्रन एंड क्लास ऑफ फैमिली. तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर एक हम लोग वहाँ पे अजम्पशन दे रहे हैं एट एन एब्स्ट्रैक्शन लेवल, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, बट एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हम लोग ऐसे बता रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं, सॉरी, चिल्ड्रंस के like children will going to have the high mortality rate when when their parents or they are belong to the economically poor class of family, or their parents are not earning so well, और जिसके जिसके फैमिली ज़्यादा अच्छे से अर्न करते हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट अमॉन्ग द चिल्ड्रन इज
very less. So this is what they are given the analytical hypothesis. Okay, but मुझे यहाँ पे लगता है कि they have given like abstraction is the highest level, but it is a kind of a common sense वाला hypothesis मुझे ये ज़्यादा लग रहा है. Don't you think so, Sunan? ये उन्होंने जो एग्जांपल दिया इट सीम्स टू बी कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, बिकॉज ये कॉमन सेंस हो गया ना कि ऐसा है तो वैसा होगा ही. मतलब गरीब गरीब फैमिली के हैं तो उनके पास ऑब्वियसली टू स्पेंड मनी ऑन द हेल्थ विल नॉट बी मच, सो देर आर चांसेस लाइक दे मे गोइंग टू हैव द हाई mortality rate here. Okay, now the next one here on the basis of nature of hypothesis. देखो, statistical hypothesis. These hypotheses are derived from a sample and relate to statistical population. Ordinarily, representative samples are selected and they are quantitatively measured. For example, workers hailing from cold climate are more efficient when compared with the workers from hot climate. ओके, तो उन्होंने कहा है कि जो कोल्ड क्लाइमेट के वर्कर्स है वो लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कंपेयर विद द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द हॉट क्लाइमेट, ऐसा उनका हाइपोथेसिस है. तो उसको उन्होंने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्यों कहा है कि जब हम लोग व्हाट वी कैन से जब हम लोग सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो सैंपल के थ्रू डिराइव किया गया है एंड विच विल बी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन. मतलब जो तुम्हारे सैंपल सिलेक्टेड है तो उसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है. सो आप लोग बोलेंगे मैम लेकिन हाइपोथेसिस तो जनरली किसी भी डेटा कलेक्शन करने से पहले की बात होती है. और यस दैट इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेरा अभी तक डेटा एनालिसिस हुआ नहीं है लेकिन मैंने डेटा कलेक्शन कर लिया है और उसके बाद में मुझे ऐसा फील होता है कि ओके चलो आई नीड टू हैव वन मोर हाइपोथेसिस हियर. तो मुझे ऐसा लग रहा है डेटा कलेक्शन करते करते कि शायद ये हो सकता है करके. So there also we can frame the hypothesis. Okay, so when we are able to frame the hypothesis by while collecting the data, we are able to understand through the population like through the sample like what kind of a effect it could going to have. तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. ओके, नल हाइपोथेसिस, अभी ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है. नल हाइपोथेसिस मतलब क्या? When hypotheses are stated negatively, they are called null hypotheses. The purpose of this hypothesis is to avoid the personal bias of the researcher in collection of data. Null hypothesis is used to gather additional support for the known hypothesis. Example, there is no significant difference between the preferences shown towards the banking facility by business class of customers and the salaried class of customers. So there are many occasions when null hypothesis is formulated with the objective of rejection. ये क्यों नहीं जा रहा है? हम्म, देखो मतलब इसका क्या है यहाँ पे कि नल हाइपोथेसिस का मीनिंग ये होता है कि जब हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं. नेगेटिव में लिखते हैं मतलब क्या कि जैसे एक एग्जांपल देना है कि मोबाइल फ़ोन, यूज़र्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन विल गोइंग टू अफ़ेक्ट द स्टडी. तो आपका एक हाइपोथेसिस रहेगा दैट द यूज़र्स ऑफ मोबाइल फ़ोन विल गोइंग टू अफ़ेक्ट ऑन द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट. और सेकंड हाइपोथेसिस रहेगा द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन विल नॉट गोइंग टू अफ़ेक्ट द स्टडी. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव में दिया, एक नहीं में बोला जहाँ पे हम लोग नो नो को यूज़ करते हैं, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. So whenever you are writing the hypothesis in a such a way, it will call as your null hypothesis. मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर आप बता रहे हो कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू फैक्ट, तो उसको कहा जाता है नल हाइपोथेसिस. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है Yes, ma'am. next say working or we can say empirical hypothesis. It is quite likely that a researcher is not very specific when he start his research assignment. मतलब ऑब्वियस ना, जब तुम लोग रिसर्च स्टार्ट करोगे तो शायद आपको पता नहीं रहेगा कि मतलब कैसे आगे बढ़ना है. आपने एक टॉपिक लिया जो आपको इंटरेस्टेड लगा करके, लेकिन इतना आइडिया नहीं रहता आपको कि क्या मेरे रिसर्च में रहेगा करके, क्या एग्जैक्टली exactly मुझे देखना है करके. वो शायद एज अ न्यू रिसर्चर उतना आइडिया नहीं आता है. ही में स्टार्ट विथ वर्किंग हाइपोथेसिस. तो वो कैसे स्टार्ट करता है? वर्किंग हाइपोथेसिस से स्टार्ट करता है. एज द रिसर्च प्रोग्रेस he may change hypothesis and be more exact and accurate.
Such accurate hypothesis will enable him to conduct the research activity more professionally. For example, a researcher may proceed with the hypothesis that in the light of economic recession, employment opportunities have reduced, but as he progresses in his research, he finds out India is only remotely affected by the global recession. Hence, he alters his hypothesis. During the formulation, it is an assumption only, but when it is put to test, it becomes the empirical or working hypothesis. So what you understood here, working hypothesis मतलब क्या कि जब तुम लोग एक टॉपिक लेते हो और तुम्हें पता नहीं कि एग्जैक्टली मेरे रिसर्च में क्या रहेगा और आप अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस बना के रखते हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हो, जैसे आप रिसर्च में आगे बढ़ते जाते हो और आपको एक आइडिया आता जाता है कि अरे हाँ मेरे रिसर्च में तो ये है, ऐसा है वैसा है, देन आपको थोड़ा नॉलेज जैसे बढ़ता जाएगा, तो जो आपने पहले हाइपोथेसिस फ्रेम किया था, नाउ यू विल गोइंग टू अगेन चेंज दैट हाइपोथेसिस। तो मतलब इसका ये होता है कि अगर आप काम करते करते रिसर्च करते करते इफ यू आर चेंजिंग योर हाइपोथेसिस, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज योर वर्किंग हाइपोथेसिस। मतलब आप उसको वैसे बनाते हो, उस हाइपोथेसिस को इस वे में क्रिएट करोगे कि आपको वो टेस्ट करने के लिए भी पॉसिबल होगा। Okay, because as a new researcher you may not able to create the hypothesis which will going to have the test validity, but लेकिन आप जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ाते जाओगे, आपका नॉलेज गेन करते जाओगे, तो आप वहाँ पे आपके आपके हाइपोथेसिस जो आपने बनाया उसको थोड़ा उसका वर्डिंग वगैरह मतलब चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग और वी कैन से द एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। समझा स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या होता है करके? यस, यस और नो? Yes, ma'am. देखो, अभी नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस बनाते वक्त हमें कहाँ कहाँ से आइडिया आता है कि ये ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए करके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट वन हियर, जनरल कल्चर। Culture has a great influence upon the thinking process of people, and hypotheses may be formed to test one or more of this idea. In India, socio-economic and leadership studies show that caste and economic and the leadership studies show that अच्छा, caste and economic status are prime consideration, which also act as hypothesis. Indian society is caste ridden, some enjoy privileges while others suffer from inequality. देखो यहाँ पे मैं आपको बता, जनरल कल्चर मतलब उनको यहाँ पे ये बताना है, दिस विल ऑल डिपेंड अपॉन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर किस कल्चर में रहता है, वहाँ पे वो उसने अभी बचपन से लेके अभी तक उसने क्या ऑब्जर्व किया है, तो उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर कंट्री में ये सिचुएशन अगर होता है तो लोग उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये सब उसका, तो वो जिस उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है रिसर्चर का, ओके। तो वो जिस कल्चर में रहता है उसको उस कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही विल गोइंग टू फ्रेम द हाइपोथेसिस। आर यू एग्री विद दिस स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको ये कि कैसे हाइपोथेसिस बनाएगा विद द हेल्प? Yes, ma'am. हाँ। नेक्स्ट इज Yes, ma'am. साइंटिफिक थ्योरी। देखो साइंटिफिक थ्योरी लीड्स अस टू फॉर्म जनरलाइजेशन फ्रॉम इट। दिस जनरलाइजेशन फॉर्म द पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, profit maximization. For example, profit maximization is the primary goal of every business. Every business. From this assumption, we can derive hypotheses such as strong financial position emerges from, आवाज किधर से आ रहा है, emerges from higher earning per share or the rate of return on capital employed is an index of business success। देखो यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या होता है कि जैसे वी कैन टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड में तो मुझे पता है कि डिमांड क्यों कम होता है, बिकॉज प्राइस बढ़ गया करके। तो आपको वो एक थ्योरी एक आइडिया देता है, मतलब through your study, by studying those particular theory, you will come to know कि ये particular situation में क्या result आ सकता है करके, how this will going to affect the other variable। तो ये आपको theories के study के through पता लगता है। So on that basis also you will going to frame the hypothesis। नेक्स्ट है एनालॉगिस। एनालॉगिस में क्या है, एक मिनट, अरे Hmm. Sometimes a hypothesis is formed from the analogy. A similarity between two phenomena is observed, and a hypothesis is formed to test whether the two phenomena are similar in any other respect.
So Julian Huxley stated that the casual observation in nature are a fertile source of hypothesis. For example, similar human activities are found in a similar geophysical region. तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, एनालॉगीज मतलब कि सिमिलैरिटी बिटवीन टू फेनोमेना, जैसे कि हम लोग को अगर हाइपोथेसिस अजम्पशन करना है, तो मैंने खुद ऐसा ऐसा हम लोग एक ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग कि ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि जो पेरेंट एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो वो बच्चे थोड़े स्मार्ट रहते हैं पढ़ाई में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द अजम्पशन। तो जब मैं किसी के ऊपर ये साइकोलॉजिकल स्टडी करूंगी और उस टाइम पे मैं नोट करूंगी कि ये पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका बच्चा भी पढ़ाई में होशियार रहेगा करके। ओके, so that kind of a analogies with the help of analogies we can create the hypothesis। मतलब जो तुम लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे ऐसे रहते हैं या फिर ये सिचुएशन में ऐसा रिएक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एज पर दिस सिमिलैरिटी, मतलब जो पहला हमारा फेनोमेना था उसके सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझा एनालॉजीज में? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस यूजेस माइंड एंड सजेस्ट रिमूवल ऑफ सोशल प्रॉब्लम through a hypothesis. Newton saw an apple falling and Buddha had a flash of wisdom, which were the result of personal experiences and provided ultimate result based on hypothesis। मतलब खुद को ऑब्जर्वेशन, तुम लोग क्या ऑब्जर्व करते हो कि कैसा करने से क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप हाइपोथेसिस बनाओगे कि अगर आपने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ ये भी इसमें शायद ऐसा हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी का भी एग्जांपल दिया, दैट कुड बी आल्सो द काइंड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि अगर आपका, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपके पेरेंट्स आपके स्टडीज़ के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी आप लोग होशियार नहीं बने, तो आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका हाइपोथेसिस चेंज होता जाएगा। सो दैट इज व्हाट द पर्सनल एक्सपीरियंस is। Okay, now next one here, observation। Hypotheses are formed based on observation होना चाहिए था actually। The collection of previous facts and the current facts related to the problem lead to the formulation of good hypothesis। For example, prize hunters are no longer entertained by the shopkeepers, or then as a result most of them are joining one prize group of buyers। Okay, so observation मतलब यस, मतलब क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही तुम लोग बोल सकते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस के थ्रू वट एवर थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व, एंड एज पर दैट यू विल गोइंग टू फॉर्म द यू विल बी एबल टू फॉर्म द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है एकेडमिक लिटरेचर। हाँ, ये भी एक थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो, एकेडमिक लिटरेचर इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल थियरीज, एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस एंड conceptualization by academicians। This literature serve as a good source for formulating hypothesis for research study। मतलब जो तुम लोग पढ़ते हो, जो तुम लोग को बुक में सिखाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि ये कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है और ये कॉन्सेप्ट किन चीज़ों पे कौन सी सिचुएशन में कैसा अफेक्ट कर सकता है करके। सो व्हेन दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज इज विथ यू एंड यू विल बी गोइंग टू स्टडी द सेम कॉन्सेप्ट इन योर रिसर्च, तो तुम लोग इजीली वहाँ पे हाइपोथेसिस लिख पाओगे, बिकॉज एकेडमिकली यू ऑलरेडी स्टडी दोज कॉन्सेप्ट एंड यू आर एबल टू like give certain observation on this particular thing। तो मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, वो हमें हेल्प करता है हाइपोथेसिस लिखने के लिए। देन द प्रीवियस रिसर्च, यस, अभी तुम लोगों के लिए तो अभी पता नहीं, लेकिन हाँ तुम लोगों ने एफसी में रिसर्च किया था, एफसी में कुछ कुछ टॉपिक तुम लोगों ने उसका स्टडी करके प्रेजेंट किया था, सो दैट वी कैन से कि तुम लोग उसके वो रिसर्च तुम लोगों ने किया हुआ है। So finding of the previous studies is used for framing the hypothesis for another study। For example, a researcher found that the number of patients admitted with the type 1 diabetes had increased body mass index। Another researcher may use this find to formulate a hypothesis as obese patients have increased risks for development of type 1 diabetes। यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च मतलब अगर तुम लोग तो जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि डायबिटीज के ऊपर अगर कोई स्टडी कर रहा है, डायबिटीज एंड ओबेसिटी के ऊपर कोई स्टडी कर रहा है, तो उसको पता लगता है कि किसी और ने इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च किया था किसी अलग एरिया को लेके, और उसने ये बताया था उसके अंदर कि
जिन जिन पेशेंट जो जो पेशेंट एडमिट किए गए थे हॉस्पिटल में, वो सबका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, जिनको टाइप टाइप 1 का डायबिटीज़ था करके। तो इसके लिए जब आप अपना इसके सेम डायबिटीज़ के ऊपर जब आप रिसर्च करोगे, सो एट दैट टाइम यू कैन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस कि अच्छा वो स्टडी में ऐसा बोला था। मतलब ओबेस पेशेंट को, जो पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा रहता है, मतलब ओबेस पेशेंट जो रहते हैं, उनको शायद टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये तुम लोगों ने हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम किया कि जिन्होंने पहले उसके ऊपर रिसर्च किया था, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था, उसके अकॉर्डिंग यू आर एबल टू फ्रेम द हाइपोथेसिस। समझा स्टूडेंट प्रीवियस रिसर्च कैसे हेल्प करता है? यस और नो? हम्म। Yes, ma'am. Next, a Yes. next a continuity of research. Research is a continuous process in the world of business. When researcher identifies a field of study, it emerges as a source of hypothesis. The rejection of some hypothesis leads to formulation of new one capable of explaining dependent variable when a research is undertaken in future. देखो, कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च क्या होता है कि ऐसे नहीं कि तुम लोगों ने एक टॉपिक पे रिसर्च कर दिया तो कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा, ऐसा नहीं रहता है। रिसर्च विल गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन। अभी उन्होंने कहा है कि मैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाइपोथेसिस आप लोग अपने हिसाब से बनाते हो, आपको क्या लगता है आप लोग उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस बनाते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं रहता है कि लाइक वॉट एवर यू आर थिंकिंग दैट ऑल विल गोइंग टू गेट एक्सेप्ट, उसके अंदर समथिंग विल गोइंग टू गेट रिजेक्ट एंड सम हाइपोथेसिस विल गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड। सो जो रिजेक्ट हो गए हैं, है ना, जो रिजेक्ट हो चुके हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो वो रिजेक्ट, जो रिजेक्ट किए गए हाइपोथेसिस है ना, उसके ऊपर शायद हम लोग आगे स्टडी कर सकते हैं कैसा रिजेक्शन क्यों हुआ, क्या था उसका उसके पीछे का रीजन रीजन करके। सो दैट वी कैन कंटिन्यू अवर रिसर्च। सो जब रिसर्च मतलब हम लोग करते रहते हैं, सो कंटिन्यूएशन ऑफ रिसर्च में हमें और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडियाज आते रहते हैं, एंड थ्रू दैट वी आर एबल टू फॉर्म द प्रॉपर हाइपोथेसिस, जो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, कि जो एक्सेप्टेबल होगा करके। नाउ नेक्स्ट वन ईयर, स्टेट ऑफ नॉलेज। यस, यस ऑब्वियसली, बिकॉज नॉलेज के अकॉर्डिंग भी हाइपोथेसिस होता है। सी, knowledge becomes the foundation based on which a researcher deduct hypotheses. In case hypotheses are rejected, theories are modified. Knowledge, like any other form of wealth, is differently distributed in the society. Only knowledgeable researcher can make optimum use of developing hypothesis because the state of knowledge is important source of hypothesis. अगर जो टॉपिक तुम लोग ले रहे हो उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आपने उनका, उसके ऊपर किसी ने प्रीवियस रिसर्च किया था क्या, वो स्टडी किया है, आपने खुद ने उसको एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, या फिर आपने किसी के साथ इसके ऊपर ऑलरेडी बात किया हुआ है, सो दैट कैन ऑफ अ नॉलेज इफ यू आर गेनिंग बिफोर राइटिंग द हाइपोथेसिस, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है एक प्रॉपर हाइपोथेसिस बनाने के लिए। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट हियर, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। A researcher formulates a good hypothesis on the basis of creative thinking and imagination. Personal ideas and the thinking capabilities of a researcher lead to a greater number of hypothesis formation as well as control over the problem. Imagination is the ability to form new images and sensation in the mind. Hypothesis driven thinking focuses on the generation of alternative hypothesis. मतलब तुम्हारा इमेजिनेशन एंड थिंकिंग कितना लेवल का, तुम लोग इमेजिनेशन कर सकते हो, कितना तुम लोग सोच सकते हो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, कितने अलग अलग वेरिएशन से आप उसको सोच सकते हो। सो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग को ऐसा पता चला कि नहीं इनकम ही ओनली रीजन है कि जहाँ पे लोग लोगों का क्लास मतलब लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के पीछे बहुत बड़ा उसका फैक्टर रहता है करके इनकम का, लेकिन आप बस वही सोचते रहोगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए इनकम चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए इनकम चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर दैट विल गोइंग टू इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप जिस इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करनी चाहिए, तो लाइक यू शुड थिंक फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, यू शुड थिंक फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, what is their eating habits, how much they're interested in education, what kind of education they are taking, which will going to help them to earn the income. So ये सब फैक्टर्स भी important रहते हैं। सो एज अ रिसर्चर यू शुड एबल टू थिंक इन अ वेरियस वे कि किससे क्या इफेक्ट हो सकता है, एंड इफ यू आर एबल टू थिंक फ्रॉम दैट काइंड ऑफ what we can say from a very different ways, that time only it will be possible for you to come out with the different hypothesis. तो इसके लिए imagination and thinking is also one kind of a sources which will going to help you to create the
hypothesis. Is it clear to you, student? What are the types of hypothesis? Yes or no? Types of hypothesis and source of hypothesis. समझा ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब भी नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी योर रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन के बारे में रहेगा. एक मिनट देखने दो मुझे. हम्म इसके बारे में आई थिंक वी शुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज रिसर्च डिज़ाइन एक टोटली न्यू टॉपिक है. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या ज़रूरत होता है, ये इन शॉर्ट मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी. ठीक है. सो स्टिल वी हैव नॉट येट कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर. अभी तक अपना 50 पेजेस तक का ही चैप्टर, मतलब 47 पेजेस तक का ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है. एंड यू हैव ऑलमोस्ट आई थिंक ये जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ अराउंड 70 और 80 पेजेस का है कुछ. तभी थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के लिए. सो दैट वी विल गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो मे बी इट विल टेक मोर, मे बी नेक्स्ट वीक. बाय द नेक्स्ट वीक एंड वी विल गोइंग टू कंप्लीट अवर फर्स्ट मॉड्यूल. ओके. तो थोड़ा बड़ा था ना मॉड्यूल. मॉड्यूल एक्चुअली रिसर्च के सब सारे के सारे बहुत बड़े हैं यहाँ तुम लोगों को, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और ये वाला जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, दिस इज द बेसिक वन. तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आगे वाले मॉड्यूल समझ में आएंगे. अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है. आप समझ रहे हो? ठीक है. अभी तक हम लोगों ने देखो आपको ये पता चला ना कि टाइप्स ऑफ क्या क्या था. हाँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको पढ़ाया, हाइपोथेसिस मैंने आपको पढ़ाया. उसके बाद में टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखे. रिसर्च प्रोसेस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या होता है. सो मेनी पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर थोरो विद द कॉन्सेप्ट. अगर आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी तो आप लोग इमीडिएटली उसको पिकअप कर पाओगे, ऐसा मैं अजम्पशन कर रही हूँ. एम आई राइट और नॉट? यस. कर पाओगे या नहीं? Yes, ma'am. कर पाएंगे. Yes, ma'am. And all of you are studying like whatever PDF we are sending to you in a Google Classroom. आप लोग उसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो. ठीक है. दिस इज योर TY and I want like all of you should come at the A grade. A grade से भी ज़्यादा लेके आना है आप लोगों को. And nobody should get the ATKT. And those who are attending, they are very sincere students and definitely they will going to work hard for their third year. This is your last year of college. देखो पता भी नहीं चला तुम लोग फर्स्ट ईयर में कब आए थे और अभी तुम लोग लास्ट ईयर में भी आ गए करके. है कि नहीं? फटाफट फटाफट टाइम चला जा रहा है. Yes, ma'am. इमीडिएटली तुम लोग को ये भी आइडिया नहीं हो जाएगा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर तुम लोग को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तुम लोग जॉब पे भी लग जाओगे. ऐसे फटाफट फटाफट टाइम चला जाता है. So be alert and be focused and please don't lose your focus. And the students who were there in the IBPS exam, so they have not performed very well as it was expected. तो अभी भी आपके पास टाइम है. IBPS का पढ़ाई करना स्टार्ट करो. ठीक है. एकदम मतलब इसको लाइटली मत लो. दिस विल गोइंग टू इम्प्रूव योर करियर. मतलब आपका करियर में आपका लिटरली पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आप इस सारी चीज़ों को सीरियसली लोगे तो. ओके स्टूडेंट. Hmm? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, okay. Manoj, have you मतलब taken the attendance? स्क्रीनशॉट लिया अटेंडेंस का मनोज ने? Yes, ma'am. ओके ओके ओके. हाँ, मनोज इज सेइंग टेक्स्ट बुक चाहिए था आईबीपीएस का. यस, इवन आई एम बिहाइंड दैट कि कैसे भी करके वो मिलना चाहिए करके. लेट्स सी क्या होता है करके. मैं व्हाट मैनेजमेंट विल गोइंग टू से ऑन दिस बिकॉज इवन आई एम बिहाइंड दिस एंड आई एम अज्यूमिंग शायद जैसे कि अभी हम लोग मे बी फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर द मोमेंट द फर्स्ट ईयर विल गोइंग टू कम वी विल अगेन स्टार्ट विद द कोर्स. लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे तुम लोगों का कैसे हो गया था, तुम लोगों का प्रिलिमिनरी एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया है. तो इस बार वी आर प्लानिंग टू हैव द मेन एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो एक ही साथ में. मतलब तुम लोगों ने प्रिलिमिनरी में 3 सेक्शन पढ़े. इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स पढ़ा और क्या था लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा तुम लोगों ने. लेकिन इस बार जो मेन एग्जाम रहता है उसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट और रहते हैं. एक कंप्यूटर का रहता है और एक कोई है. तो वो दो सब्जेक्ट को भी हम लोग ऐड करने वाले हैं. ठीक है. सो जब वो 2 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे उस टाइम पे तुम लोग भी आ जाओ. लाइक फ्री में आ जाओ चलेगा, लेकिन लेक्चर अटेंड करो. ठीक है. वो 2 सब्जेक्ट Yes, ma'am. बिकॉज तुम लोगों के लिए वो वाला सेक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ाए थे ना, तो इस बार ऐसे ही तुम लोगों समझने के लिए एटलीस्ट आ जाओ. जब भी लेक्चर्स रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी. अभी वी आर स्टिल देयर इन द आईबीपीएस ग्रुप तो वो हम लोग कर लेंगे.
लेकिन तुम लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. इट मीन्स इट शोज दैट यू आर नॉट फोकस कि तुम लोगों को क्या करना है करके फ्यूचर में. अगर तुम लोग फोकस रहते तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता. ठीक है. अभी भी टाइम है. सेकेंड हैंड बुक अगर मिलता है तुम लोगों को एमपीएससी यूपीएससी का पढ़ाई करने के लिए, आईबीपीएस का पढ़ाई करने के लिए, या फिर लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है अपने कॉलेज के, वहाँ पे जाओ स्टडी करना स्टार्ट करो. बहुत टाइम मिला तुम लोग को लास्ट ईयर में भी, ये साल में भी. डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, टेक द एडवांटेज ऑफ इट. ओके. हम्म. Okay, ma'am. चलो. Yes, ma'am. Shall I end the lecture, student? Hmm? Yes, ma'am. Okay, okay. Bye, bye, student. Bye, ma'am. Thank you.